رکھا گن لگاوے انجیکشن RBH ونان پونسچ سمجھدار چھ خوشحال زنان ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے پیش ہے سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کٹرا امرتسر وندے بھارت ٹرین سمیت 3 وندے بھارت ریل گاڑیوں کا کیا افتتاح۔ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا امرتسر وندے بھارت ٹرین سے شردالووں کو آسانی اور مقامی اقتصادیات کو فروغ ملے گا، LG منوج سنہا۔ فوجی سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آپریشن سندور کو ایک کلیدی اور بڑی اہمیت کا حامل مشن دیا قرار، اور SKICC سری نگر میں منعقدہ 9 روزہ چنار بک فیسٹیول آج ہوا اختتام پذیر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرناٹک میں KSR ریلوے اسٹیشن سے 3 وندے بھارت ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ان میں بنگلورو بیلگاوی، ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور امرتسر اور ناگپور پونے وندے بھارت ٹرینیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے میٹرو سروس کی یلو لائن کا بھی آغاز کیا۔ کٹرا اور امرتسر کے درمیان ریل گاڑی منگلوار کو چھوڑ کر ہفتے کے 6 دن چلے گی۔ کٹرا سے یہ ریل گاڑی صبح 6:40 پر چلے گی اور 12:20 پر امرتسر پہنچے گی، جبکہ امرتسر سے سپہر 4:25 پر یہ ریل گاڑی روانہ ہوگی اور رات 10 بجے کٹرا پہنچے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امرتسر اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اسٹیشن کے درمیان وندے بھارت ریل گاڑی کا افتتاح کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ اس ریل گاڑی کی بدولت نہ صرف شری ماتا ویشنو دیوی آنے والے شردالوؤں کے سفر میں آسانی ہوگی بلکہ مقامی اقتصادیات کو بھی فروغ ملے گا۔ LG نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر میں ٹرانسپورٹ بالخصوص ریلویز سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں ہوشربا وسعت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہی پنجاب سے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر پہلی مال بردار ٹرین پہنچی۔ LG نے کہا کہ مال بردار ٹرین سروس کی شروعات وادی میں ٹرانسپورٹ سے متعلق بنیادی ڈھانچے اور تجارت کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ آپریشن سندور فوج کی تینوں شاخوں کے مابین تال میل اور اشتراک کی ایک شاندار مثال ہے۔ سکندرآباد میں کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ میں اعلیٰ دفاعی مینجمنٹ کورس کے شرکاء اور سینئر افسروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسلح افواج میں اتحاد اور اشتراک کے بارے میں کلیدی نقطہ نظر پیش کیا اور مشترکہ کارروائی کا مستقبل کا خاکہ طے کرنے کے سلسلے میں اہم عوامل کو اجاگر کیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے جامعہ صلاحیت سازی کی اہمیت، آتم نربھرتا اور فوج میں بڑی تبدیلیوں کی تفصیلی سمجھ بوجھ پر بھی زور دیا تاکہ تکنیکی اہمیت والی جدید طرز کی فوجی کارروائیوں میں ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں سے نمٹا جا سکے۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آپریشن سندور کو ایک کلیدی اور بڑی اہمیت کا حامل مشن قرار دیا ہے جسے سیاسی اعتبار سے واضح ارادے کے ساتھ فوج کی بے مثال صلاحیت شامل تھی۔ IIT مدراس میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اپیندر دویدی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں کے وحشیانہ حملے کے تناظر میں کس طرح اس آپریشن کا منصوبہ تیار کر کے اسے انجام دیا گیا۔ اس حملے کی تفصیل فراہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہ اس بات سے متفق تھے کہ فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت ہے اور انہیں لاہ عمل طے کرنے کے لیے پوری آزادی دی گئی۔ جنرل اپیندر دویدی نے یہ بھی کہا کہ فورسز کے لیے اس طرح کی سیاسی حکمت عملی اور وضاحت پہلی مرتبہ دیکھی گئی۔ کلگام ضلع کے اکہال جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹوں کے خلاف فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ یہاں دوران رات ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ آپریشن اب اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ اس دوران وکٹر فورس کے GOC بھی آج صبح مذکورہ علاقے میں پہنچے۔ دشوار گزار جغرافیائی حالات اور عام لوگوں کے تحفظ کو لے کر فورسز یہ ملیٹنٹ مخالف کارروائی احتیاط کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ حکام نے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور کسی بھی مدد کے لیے مقرر کیے گئے نوڈل افسروں کے ساتھ رابطہ کریں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو کی قیادت میں پیغام پہل کے تحت پیرنٹ ٹیچر میٹ کے حوصلہ افزا اور امید افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس پہل کے تحت والدین، اساتذہ اور طلباء کے درمیان 2,93,000 ملاقاتوں کا اہتمام ہوا جس میں کمیونٹی ممبران نے بھی شرکت کی۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے ہائر سیکنڈری اسکول DK مرگ کلگام میں اس مثالی پہل کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ جب والدین، اساتذہ اور طلباء ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو طلباء میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ وزیر کے ہمراہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر JN اتو بھی تھے۔ قابل ذکر ہے کہ 3,561 اسکولوں کا احاطہ کرنے کے دوران والدین اور اساتذہ کے درمیان 524 نشستیں ہوئی جن میں مجموعی طور پر 2,93,604 شخصیات نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر JN اتو نے کئی افسران کے ہمراہ اننت ناگ کے شاہ آباد علاقے میں کئی اسکولوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے والدین، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مفصل بات چیت کی۔
उधर पुलवामा में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर सैयद मुबशरा ने शादी मर्ग जोन का दौरा करके मुख्तलिफ स्कूलों में पहल के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। ऊडी बारामूला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉइंट डायरेक्टर नार तनवीर अहमद हकीम ने वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान हुई मुलाकातों का मौके पर ही जायजा लिया, जबकि बांडीपोरा के क्लस्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मांतरी गांव में भी इसी तरह की मुलाकात का एहतमाम हुआ। वादी के दीगर इलाकों के स्कूलों में भी वालिदैन और असातिज़ा की नशस्तें मुनक्किद हुई। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वादी में आज भी मुतअद्दिद मकामात पर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिनके दौरान शुरका ने हुब्बुल वतनी के जज्बे का बड़े जोश खरोश के साथ इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यूनिट ने आज इस सिलसिले में बाग अली मर्दा खान नौशहरा से एक ई रिक्शा तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें ई रिक्शा ड्राइवरों, तिजारत पेशा अफराद और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। यह रैली शहर श्रीनगर के कई इलाकों से गुजरने के बाद खान यार में इख्तिताम पसीर हुई। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे भी पेश किए गए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने गांधरबल में एक तिरंगा रैली की क़यादत की। ये रैली म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस दोदराहामा से क्लॉक टावर तक निकाली गई और इसमें बीजेपी वर्करों, पार्टी के सीनियर लीडरों और मकामी लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय की शान है। इस दौरान शुरका ने तिरंगा लहरा कर अपने हुब्बुल वतनी जज्बे का इजहार किया। बीजेपी के अनंतनाग यूनिट ने भी आज एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। ज़िले के पैठनंबल इलाके में मुनक्किद इस रैली की क़यादत बीजेपी ज़िला सदर अनंतनाग राकेश कौल ने की। रैली के शुरका ने मखसूस अंदाज में अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। इस दौरान कौमी नगमे और गीत भी पेश किए गए। पुलवामा ज़िले के त्राल इलाके में भी बीजेपी की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने इस रैली की क़यादत की और इसमें बड़ी तादाद में बीजेपी वर्करों और लीडरों ने शिरकत की। यह रैली टाउन हॉल से शुरू और क्लॉक टावर के नज़दीक इख्तिताम पजीर हुई। रैली की वजह पूरे कस्बे में हुब्बुल वतनी के हवाले से एक अलग ही समा महसूस हो रहा था। कुपवाड़ा ज़िले के वारसून इलाके में भी आज एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। गुजर बकरवाल यूनिट कुपवाड़ा के एहतमाम से मुनक्किद इस रैली में बड़ी तादाद में मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। रैली की क़यादत गुजर बकरवाल यूनिट के ज़िला सदर चौधरी मुश्ताक ने की। रैली के शुरका ने हाथों में तिरंगा लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे का भरपूर इजहार किया। इस दौरान मुकर्रीन ने कहा कि कौमी जज्बे को फ़रोग़ देना और इत्तेहाद व रवादारी बरकरार रखना वक्त का तकाजा है। SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा 9 रोज़ा चिनार बुक फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस फेस्टिवल के दौरान आज भी कई अदबी सेशनों, कल्चरल सरगर्मियों और बहस मुबाहिसों का एहतमाम हुआ। बड़ी तादाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, बिलखसूस कुतुब बीनी से उनस रखने वाले लोगों ने आज इस किताब मेले में शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान मुल्क के नामवर पब्लिशरों ने अपने स्टॉल कायम किए थे, जिनसे हर रोज़ बड़ी तादाद में तलबा, स्कॉलर और ज़बान व अदब से दिलचस्पी रखने वाले मुस्तफ़ीद हुए। आज इस फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान मुख्तलिफ अहम शख्सियात को उनकी गिरां कदर खदमात के सिले में एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर चेयरमैन दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर विजय धर और डायरेक्टर दूरदर्शन न्यूज़ काजी मोहम्मद सलमान को बेतरतीब तालीम और मीडिया शोबों में उनके रोल के लिए एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN तो भी मौजूद थे। MPML हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के तलबा ने भी इस बुक फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस स्कूल के तलबा ने फेस्टिवल के दौरान कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया और करियर काउंसलिंग, आर्टोकल्चर, मौसीकी वगैरह समेत मुनक्किदा बहस व मुबाहिसों के मुतअद्दिद सेशनों में शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि स्कूली तलबा की इस बुक फेस्टिवल में शिरकत हर लिहाज से हौसला अफजा और इत्मीनान बख्श है। जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वर्करों की भूख हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी रही। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर जारी इस भूख हड़ताल में AICC के मीडिया एंड कम्युनिकेशन चेयरमैन पवन खेरा भी आज भूख हड़ताल में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की बहाली यहाँ के लोगों का आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ हासिल करने तक कांग्रेस पार्टी अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आज आर्मी अस्पताल के बेस कैंप में मुनक्किदा खून के अतिये के कैंप के मौके पर नामनिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि खून के अतिये का यह कैंप उन फौजी जवानों के लिए मुनक्किद किया जा रहा है जो कि सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। शिवसेना की तरफ से मुनक्किदा इस कैंप में महाराष्ट्र के 1200 डोनर्स ने शिरकत की। एकनाथ शिंदे ने कश्मीर आने वाले सयाहों की मेज़बानी और उन्हें ताउन देने के लिए यहाँ के लोगों की सताइश की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी वर्करों से खिताब किया और उन्हें अमन और भाईचारे की रिवायत को बरकरार रखने पर जोर दिया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने रेलवे के मरकजी वजीर से अपील की है कि कुपवाड़ा बारामूला रेल लिंक पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। उन्होंने मालबरदार ट्रेन की वादी की आमद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसकी वजह से तिजारत पेशा अफराद, फ्रूट ग्रोवर्स और दीगर मुतलकिन को फ़ायदा पहुंचेगा और मकामी इक्तिसादियात में बेहतरी आएगी। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से यहाँ के लोगों का एतमाद बहाल होगा। मौसूफ ने मजीद कहा कि बेशक जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और मरकज़ को जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने इन बातों का इजहार आरिजाल में मुनक़दा पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन के खिताब के दौरान किया। मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़े हुए गोश्त और चिकन के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई है वो काबिल इत्मीनान है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ताहम यहाँ ये हर शख्स जानना चाहता है कि आज तक ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि मुतल्लिका महकमा ऐसे कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात रोनुमा ना हों। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि आम लोग भी गोश्त और चिकन से बने पकवान खरीदने से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की पूरी छानबीन करें। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने ऐसे कारोबार पर शदीद तशवीश का इजहार किया है कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ग्रुप के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा है कि इस कारोबार में जो भी मुलव्विस है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन से हैं, हमें बहुत तशवीश है इस बात का कि एक रॉटन मीट की कंप्लेंट सामने आई है हमारे, और हम समझते हैं कि इसमें ये एक बहुत सीरियस मसला है और इसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो प्रोब होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो एंट्री पॉइंट्स है स्टेट के, जैसे लखनपुर है या बाकी एंट्री पॉइंट्स है, यहाँ पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और हर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी में जिसका इसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो हेल्थ ऑफिसर वहाँ होते हैं जिनका फ़र्ज होता है ये देखना कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो साफ शफाफ होनी चाहिए और वो सेहत के लिए मुज़िर नहीं होनी चाहिए। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने भी वादी में सड़े हुए गोश्त और चिकन के कारोबार पर तशवीश का इजहार किया है। अपने एक बयान में उसने ऐसे गोश्त और चिकन की वादी दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है और ऐसे कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सयाहती मकाम दूधपर्थी में सयाहत से जुड़े लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद उनका रोजगार ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से वो शदीद माली मसाइल से दो चार हो गए हैं और इन पर बैंक कर्जों का भारी बोझ भी है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है वो ज़ाती मुदाखलत करके दूधपथरी में सयाहती सरगर्मियाँ बहाल करने के लिए इकदाम करें। इस दौरान सीपीआईएम के लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि जिला बड़गाम में दूधपथरी, तोसमैदान, यूसमर्ग, नीलनाग और सयाहती एतबार से दीगर अहम जगहों को सयाहती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर सयाहती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होने से बड़ी तादाद में मकामी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मलनगाम बाड़ीपोरा में हज़रत सैयद रसूल शाह अलमारूफ नंगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का 7 रोज़ा सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के आखिरी रोज़ आज वहाँ आस्ताने आलिया में कुरान खानी और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में अमन व अमान, तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। उर्स की तकरीबात में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की, जिनके लिए वहाँ खाने पीने का भी खुसूसी तौर इंतज़ाम किया गया था। उर्स की तकरीबात में शामिल हुए ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सभी इक़दाम किए गए थे। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल हज़रत शेख कामिल बाबा अली वाली रहमतुल्लाह का उर्स उनके आस्ताने आलिया वाक़ा मुत्सिल खानकाए मौला श्रीनगर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। रहीम साहिब समा गुलकार सोसाइटी की जानिब से आज कुंजर छानपुरा में यौम रहमान बट मनाया गया। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब में वादी के कई मारूफ कलमकारों, शुअरा और गुलकारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्री ने रहमान बट की सूफ़ी शायरी और कश्मीरी अदब के तई उनकी खदमात पर रोशनी डाली। बाड़ीपोरा ज़िले में नाला मधुमती में आज गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ते एक नौजवान नहाने के दौरान गरकाब हुआ। इस नौजवान की शनाख्त राजौरी ज़िले के नौशहरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 22 बरस के नज़ाकत अली खटाना के तौर हुई है। हादसे के फ़ौरन बाद SDRF जम्मू कश्मीर और पुलिस रज़ाकारों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, ताहम तकरीबन 2 घंटों के बाद गरकाब हुई लाश को बरामद किया गया।
بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 7 دن کے دوران اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ایک ماہر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں کل شام تک موسم کی صورتحال جوں کی توں رہنے کا امکان ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ 12 اور 15 اگست کے درمیان UT میں بیشتر جگہوں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔